आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट. सो रिकॉल द एग्जांपल ऑफ चैप्टर 1 इन विच मेटल इज प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल Na. सो सेकेंड चैप्टर में हमने कंपाउंड किया था इसका NaCl. सो हियर मेटल इज रिएक्टिंग विद नॉन मेटल. फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी मैग्नीशियम फॉर्मिंग MgO. अगेन मेटल इज रिएक्टिंग विद नॉन मेटल. ठीक है. सिमिलरली एल्यूमिनियम रिएक्ट with oxygen forming Al2O3 or calcium react with Cl forming CaCl2. तो यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए, here metal is reacting with non-metal. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हम नॉन मेटल की बात करें, सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. सो हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद इटसेल्फ फॉर्मिंग H2, it can form O2, N2, it can react with this forming NH3. Similarly, carbon react with hydrogen forming CH4. So, in case of non-metal can react with metal as well as it react with itself to form a compound. Now the question arises, why all these metal and non-metals are reacting? Before discussing further, we will discuss here the noble gases. Noble gases, for example, helium, neon, argon. Atomic number 2, atomic number 10, atomic number 18. Configuration in terms of K element shell, it is 2, it is 2, 8, it is 2, 8, 8. Now metal and non-metal तो react करते हैं, but these noble gases do not react. अब यहीं से हमें आंसर मिलेगा कि why metal और non-metal react. So in case of noble gas, their outermost shell is completely filled. For example, in case of helium, the outermost shell is K, maximum attainability is 2 electron. In case of neon, outermost shell is L, maximum electron it can contain 8. Similarly, M. So noble gas have completely filled its outermost shell. It has no tendency to lose or gain electron, hence they do not react. ठीक है. outermost shell इनका ऑलरेडी complete है. अब यहाँ ये ना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना चाहेगा. सो दैट इज वाई हीलियम एंड नियॉन एंड आर्गन डू नॉट रिएक्ट. नाउ वेयर एज इन केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सो एक मेटल एंड नॉन मेटल की ये भी डेफिनेशन होती है, व्हेन देयर आउटरमोस्ट शेल कंटेन 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड मेटल, एंड द नॉन मेटल विच कंटेन 4 or more than 4 इलेक्ट्रॉन, दे कंसिडर्ड एज एन नॉन मेटल इन देयर वैलेंस शेल. नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि in case of noble gas the configuration for helium is 2, for neon is 2, 8, for argon is 2, 8, 8. Now they are highly stable. Why they are stable? Because their outermost shell is completely filled. Now what happened in case of metal and non-metal? If metal tends to attain the noble gas configuration, it has to remove its electron. Then only it can achieve this noble gas configuration. Whereas in case of non-metal, it has to gain electron. It can gain 1 electron, it can gain 2 electron, it can gain 3 electron. So in all these two cases, we can say metal lose electron to achieve the noble gas configuration, or non-metal gain electron to attain the noble gas configuration. Now because of this transfer of electron, they are reacting with each other. So the first answer, that why do metal and non-metal are reacting? They are reacting in order to attaining the noble gas configuration. Now how can they attain the noble gas configuration? That is by two ways. One is the transfer of electron, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, that is by the loss or a gain. वो एक ही कंपाउंड में होगा. अगर मेटल लूज कर रहा है तो नॉन मेटल गेन करेगा. सो वी कैन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया. ठीक है. सो मेटल एंड नॉन मेटल कैन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द सेकेंड केस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हाई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर. सो द वैलेंस शेल और द आउटरमोस्ट शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड in case of metal and non-metal. In order to attain noble gas configuration, metal and non-metal reacts
with each other. So अपना outermost shell completely filled करने के लिए metal and non-metal react करते हैं. So for example, if we take a compound NaCl, ठीक है, कैसे वो फॉर्म होता है, तो Na that is sodium, atomic number 11, तो configuration बन जाएगी 281. So it loses its 1 electron, loss of electron से positive charge आता है, ठीक है, and this electron is removed, we can say. Then in case of chlorine, configuration 287, it gain 1 electron and forming Cl minus, and here now the configuration is 288. In this case it is 28. तो आप दोनों ही केस में देख सकते हैं outermost shell is completely filled. यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि why the प्लस चार्ज और माइनस चार्ज comes over it. तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इसमें 11 ही प्रोटॉन हुए एंड 11 ही इलेक्ट्रॉन हुए. द मोमेंट इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव, तो 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया, एक जो प्रोटॉन बचा बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज आया. इन द सिमिलर वे क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नाउ इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गए, हेंस इट इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये आपने क्लास 9th में किया हुआ है. जस्ट यहाँ पे एक रिकैप दिया आपको, व्हाई द पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज अराइज ऑन एन एटम. सो दिस वन इज अ कैटायन, this one is anion. Now because of this positive and negative charge they have a force of attraction which binds it. ठीक है, तो अगर हम लुईस डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो Na के केस में जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम उतना डॉट लगा देंगे, Na डॉट. सिमिलरली Cl के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसे यहाँ पे डॉट या क्रॉस किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दीज आर द 7. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर शो करने के लिए. अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो वी कैन से Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट अराइजेस, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नाउ इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट each other and this force of attraction is known as electrostatic force of attraction, which is formed in between the both, and we can say this bond which is formed between Na and Cl is known as ionic bond, and this compound is known as the ionic compound, ionic or electrovalent. So again if we repeat, sodium loses 1 electron, chlorine gain that electron and form chloride ion. Now this transfer of electron, due to which the electrostatic force of attraction arises, leads to formation of ionic bond. So if we have to ionic bond is defined as the bond which is formed by transfer that is loss or gain of electron between metal and non-metal. तो ये दो important point है, कैसे ट्रांसफर और किसके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल. दैट बॉन्ड इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड. आयनिक इसलिए कि आयन्स हो रही हैं, आयन्स कैटायन एंड एनायन है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. और यहीं से हमें डेफिनेशन मिल जाएगी व्हाट आर आयनिक कंपाउंड. सो द कंपाउंड्स, बॉन्ड की जगह सिंपल आप कंपाउंड वर्ड लिख देंगे. The compound which is formed by transfer, that is loss or gain of electron between metal and non-metal, is called ionic compound. Now next we will discuss the formation of MgCl2. So again Mg atomic number 12, configuration 282, it loses 2 electron and forming Mg2 plus by the loss of 2 electron, और configuration हो जाएगी इसकी 28. Similarly Cl is 287, it can gain easily 1 electron and forming Cl minus, that is 2, 8 and 8.
नाउ इफ वी हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हमें अगेन डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा. mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे. वेयर Cl कैन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट 1 टाइम. ठीक है, तो अब यहाँ तो लॉस का 2 इलेक्ट्रॉन का होना है, बट Cl सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहाँ पे हम 2 Cl एटम लेंगे. ठीक है, तो 1 ऊपर एक Cl एटम है और एक नीचे है. ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हुआ. फाइनली इट इज फॉर्मिंग Mg2+ एंड Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन चुका है. बट बैलेंस करने के लिए अभी हमने क्या किया, 2 Cl लिए, तो इट विल बी फॉर्मिंग MgCl2. ठीक है, वेयर Mg इज 2+ एंड Cl इज सिंगल माइनस. Mg2+, Cl सिंगल माइनस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आया. ठीक है, 9th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम वैलेंसी को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Mg वैलेंसी 2, Cl वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाता था, MgCl2. अभी हमने सिर्फ इसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलस्ट्रेट किया. ठीक है, सो ये जब भी आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये तीनों ही स्टेप्स लिखने होंगे. Now, for example, in case of Na2O, we know that sodium configuration 281, it loses 1 electron forming Na plus electron. Configuration is 28. Now, oxygen configuration 26. अब इसको ऑटोमोशल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग O पे 2-. कॉन्फ़िगरेशन 28. अब यहाँ पे सोडियम लूज तो 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, पर ऑक्सीजन को 2 रिक्वायर्ड है, तो अगेन हमें यहाँ पे सोडियम एटम कितने देने पड़ेंगे, 2. सो अब हम लिखेंगे Na आउटोमोशल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक और Na आउटोमोशल में 1 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटोमोशल डॉट स्ट्रक्चर से. यहाँ पे इसने यहाँ से ये ट्रांसफर किया, यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ, फॉर्मिंग Na कितने थे, 2O, जो कि एक्चुअल में Na+ और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया हमने Na2O से. और लास्ट वन इज द MgO, अगेन मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन 282. ठीक है, तो इट लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 26, it gaining 2 electron and forming O पे 2- ion. outermost shell completely filled 2-8, in this case also 2-8. और अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीशियम आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 डॉट लगाए. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गए एंड इट इज फॉर्मिंग Mg2+. O के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 2- और हम इसे बोल सकते हैं MgO. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अभी हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किए, एक और क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, व्हाट आर द कैटायंस एंड अनायन प्रेजेंट इन द गिवन एग्जाम्पल और गिवन आयनिक कंपाउंड. सो इन केस ऑफ MgCl2 द कैटायन इज Mg2+, अनायन इज क्लोराइड आयन, क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन है. ठीक है, Cl-. इन केस ऑफ Na2O सोडियम आयन Na+, ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन की जो आयन है उसे हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं. सिमिलरली मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन आयन और द ऑक्साइड आयन. अगर अभी भी किसी को डाउट है तो डाउट हो सकता है हाउ टू राइट दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. आपको अगर मेटल या नॉन मेटल का किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो उसके लिए एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम एक डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 5. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं. तो नाइट्रोजन के अराउंड अगर हम 5 डॉट लगा दें, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं सभी डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4,
तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो मैं 4 डॉट्स लगाऊंगी, 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे लिखना है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, ठीक है, तो मैं 3 डॉट्स लगा सकते हैं, 1 2 एंड 3। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उतने डॉट उस एटम के अराउंड लगा देते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आप ये कंपाउंड डिस्कस कर सकते हैं, CaCl2, ठीक है, देन CaO। अभी जैसे हमने NaCl या MgCl2 या Na2O डिस्कस किया, तो आप वैसे ही सेम फॉर्मेशन से ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी हमने डिस्कस किया मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वी कैन से इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिटली चार्ज आयंस हैं तो अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, दिस attraction is known as the electrostatic force of attraction and it is very strong force of attraction। तो यही है जो इसकी maximum properties को control करेगा। So the first property is about the physical nature। Now as we know they have a strong electrostatic force of attraction, they are exist solid in nature। First physical property if we can say, सो इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड और हार्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। सो एज वी नो द मेटर और आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड एंड इट इज वेरी हार्ड इन नेचर, दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन व्हाट इज द रीजन, बिकॉज अपोजिटली चार्ज है, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट एक है बट आंसर डिफरेंट है, ठीक है। दैट इज सॉलिड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, हेंस इट पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी। सो इट इज सॉल्युबिलिटी or we can say ionic compound is soluble only in the polar solvent। अब polar word का meaning क्या है, so 2 टाइप के solvent होते हैं, polar and non-polar। water that is H2O comes under the category of polar, तो इसमें भी हम negative positive and बोल सकते हैं। तो it always dissolve the ionic compound in it। non-polar में जितने भी आपके ऑयल आ गया that is kerosene आ गया, पेंट आ गया, they all are non-polar। तो ये कभी भी वाटर को सोल्यूबलाइज नहीं करेंगे या आयनिक कंपाउंड को सोल्यूबलाइज नहीं करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा, अगर हम ऑयल में वाटर ऐड कर दें, बोथ आर ऑफ डिफरेंट नेचर, तो वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। वेयर एज अगर हम किसी सॉल्ट को दैट इज आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑयल या पेंट में डालेंगे तो वो इनसॉल्यूबल रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है लाइक डिजोल्व्स लाइक। जैसे ये पोलर है, पोलर का मतलब 2 एंड बनना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो 2 एंड्स हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 एंड्स हैं वाटर में, अपोजिट एंड, तो अपोजिट एंड अट्रैक्ट और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल यूनिवर्सल क्वेश्चन है, दैट इज लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, दैट इज इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। Last but important property, that is conduction of electricity। So we can say ionic compound है, उनमें ions present है। electricity क्या होता है, movement of ion और charged molecules। So ionic compounds are insulator in solid state। Now why it do not conduct electricity in the solid state? ion है वो totally attracted है, move नहीं कर रही जब वो सॉलिड स्टेट में पैक्ड फॉर्म में है, तो मीनिंग इट इज इन सॉलिड स्टेट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ही ये मोल्टन फॉर्म में हो जाएंगी तो नाउ आयंस विल स्टार्ट टू मूव एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस कैरीज द करंट। तो वी कैन से आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट
do not conduct electricity, but in molten state it conduct electricity. तो ये एक important point है कि ionic compound solid state में तो do not conduct electricity, but in case of molten they can easily conduct electricity. अब यहीं पे एक activity है जो आपको NCERT में given है, आप देख सकते हैं इन फिगर 3.8. हमने इसमें ग्रेफाइट रॉड लिया है, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. नाउ बिकॉज इन सॉल्ट सॉल्यूशन आयंस आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट, सो मोल्टन स्टेट में है, अब दे कैन इजीली मूव एंड हेंस जो बल्ब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो कर जाएगा बिकॉज देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस विच कैरीज द करंट. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट वेयर एज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट.